My guest today, who is the CCO of Go Lootlo, Pakistan's largest in-store QR app. He is here to tell us exactly where the right savings are, where the discounts and deals are. तो वो सब चीज़ों के साथ आईबी का जब मैंने ये काम शुरू किया, रिमेंबर माय डैड कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि ठीक है तुम जो कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, इफ यू वांट टू डू इट, बट यू नीड टू मेक श्योर कि पढ़ाई के पैसे मैं देता हूँ. Academic excellence का success सिर्फ एक GPA नहीं होती. You don't have to fit into that mold as a predictor of success. Secondly, if you know कि GPA is not working out, the importance of practical work experience to compensate for that. अब नहीं पता था ना कि बनेंगे, तो उस वक्त तो बड़ा डर लगता था कि 2.9 लेके हम मार्केट में उतरेंगे तो हमारे साथ क्या होता है. शक्ल कैसे दिखाएं? I think your episode is a true masterclass for students, not just in IB, anywhere in Pakistan. Assalamu alaikum and hello everyone to this week's episode of Really Real with Elise. I can tell you one thing, this episode will be very useful because let's face it, whatever socio-economic strata we come from in Pakistan, we're very concerned of not just our finances but our financial stability. So with this in mind, my guest today, who is the CCO of Go Lootlo, Pakistan's largest in-store QR app, he is here to tell us exactly where the right savings are, where the discounts and deals are. Thank you so much for being here today, Hassan. Thank you, Arida, for having me here. It's my absolute pleasure, and I, off camera, have learned all the fun journey you've had to get to CCO. I'll get into that. But before talking about Go Lootlo's CCO, tell me about your childhood, your background, your education. So I'll just not get into a lot of details of Yeah. that because it's going to eat up most of our time Yeah. otherwise. I studied from IBA for my undergraduate degree, and during that degree, what I did was different between my experience and I would say most of the people who are studying there is that I used to do a part-time job when I was at IBA, Okay. and that became the highlight of my career. Eventually, that became the highlight of my degree also. So there were a lot of things that eventually got tagged to that experience that I'm going to tell you about. So what happened was that I was in my second year, and we were we just completed a second year. And you were doing the BBA program? I was doing the BBA Okay. program. And in that summer break, there was an internship opportunity at one of those startups who hasn't even set up their basic office and stuff. And they were hiring for interns. And they were बिल्कुल setting early up. stages. बिल्कुल early stage. There was a house, उसके अंदर एक study room के अंदर बैठे हुए थे 4 टेबल लगा के. Like कुछ भी नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था. Even the website used to have a timer कि अभी इतने दिन में खुलेगी. So like कुछ भी नहीं था उसका. अच्छा. और उसके ऊपर I was hired as an intern over there. And my job was to go out in the market and identify merchants who will give us good discounted deals. So discount or deals ना उस वक्त से जिंदगी में ऐड हो गया when I was in my third year of IBA. You were a student. I was a student there. And during those summer vacations, जो हमारी जो 2 महीने का break होता है semesters के बीच में, I started there as an intern. I did for 2 months. वो 2 महीने खत्म हुए, so my उस वक्त के जो CEO थे, he came in and he said कि एहसान तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं कर लेते हो? तो मैंने कहा बॉस एक जॉब वो पढ़ाई करता हूँ, वो छोड़ नहीं सकता मैं जॉब के लिए right now. So he was like, do it as a part-time thing because we really want you on board. So I was like, okay, that's something that I can work with. तो मैंने वो पार्ट टाइम स्टार्ट किया उनके साथ. सो ड्यूरिंग माई थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ IBA, आई वाज वर्किंग विद देम एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉई. एंड आई वुड से विद इन दोस 2 years लर्निंग कर्व तो साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल था. माई ग्रोथ वाज एक्सपोनेंशियल ऑल्सो. सोचें कि इंटर्न से स्टार्ट हुआ हुआ कैंडिडेट, व्हेन आई लेफ्ट देम आफ्टर 2 years, आई वाज द हेड ऑफ सेल्स. I used to have a team of 11 people in the office full time while I was at part-time employee doing my juggling between like studies and managing that schedule because IBA classes भी ऐसे होती है ना कि आपने कुछ classes सुबह में ली, कुछ दोपहर में हो And रही हैं. attendance पे काफी strict होते हैं बहुत वो. strict है and then there were 2 campuses, तो उसके बीच में juggling around between them कि उस वो टाइम को अगर आप सोचें, and how long has it been इस चीज को? इस चीज कितने साल हो गए? 2013 2014, so तो probably 10 9 years, 10 years right? now, It's a right? good Yeah. 10-year recap. Yeah. उस वक्त when you were juggling, Yeah. and alhamdulillah you were very successful at that multitasking. Yeah. But if you think back now to Hassan at IBA, सबसे बड़ा उस वक्त चैलेंज क्या था इस जर्नी का? आई थिंक उस वक्त जो चीज फील होती थी ना, सबसे बड़ा जो दिमाग में उस वक्त फेयर हाँ. था, वो फेयर ये था कि यार क्योंकि मेन चीज तो पढ़ाई है ना. पढ़ाई. उस टाइम पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पढ़ाई था, जिसके लिए घर वालों ने वहां भेजा था कि भाई पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं और करना है. IBA था तो और IBA एक्सपेक्टेशन था, सबकी होती हैं. एंड ऑब्वियसली पूरे मतलब आई वाज द ओनली वन इन माय फैमिली हु वेंट टू IBA आफ्टर माय सिस्टर, एंड माय सिस्टर set up a very big benchmark. She was a third place holder and all of Okay. that. So academics was something very strongly
embedded at my home कि पढ़ाई तो सबसे ज्यादा गोल्डन स्टैंडर्ड हाई हाँ, था। और पढ़ाई के ऊपर फोकस सबसे ज्यादा करना है। और मेरे माशाल्लाह बड़े भाई बहन सब लाइक एवरीवन लाइक अ डॉक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो उनने प्रेशर फील्ड्स भी भी बहुत था स्ट्रॉन्ग कि वाली यू हैव चूज टू की डिलीवर है। एज या वेल। तो और सबसे छोटा था मैं, तो सबको लगता ही था कि पता नहीं क्या करेगा जाके, पढ़ेगा भी सही से कि नहीं पढ़ेगा। तो वो सब चीज़ों के साथ आईबी का जब मैंने ये काम शुरू किया, रिमेंबर माय डैड कमिंग टू मी एंड टेलिंग मी कि ठीक है तुम जो कर रहे हो तुम्हारी मर्जी, इफ यू वांट टू डू इट, बट यू नीड टू मेक श्योर कि पढ़ाई के पैसे मैं देता हूँ। सो दैट कांट बी गोइंग बैड और योर ग्रेड्स कांट गो डाउन कि तुमने अपना कुछ और शुरू कर दिया। वो चीज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रायोरिटीज पढ़ाई। सही तो होनी मुझे जो चाहिए। फेयर था ना वो ये होता था हर वक्त कि मैं इतनी मेहनत करके अपने लिए दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ आज, और मैं सीख भी रहा हूँ, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, सब कुछ है, बट अगर पढ़ाई खराब होती है तो वो सारी चीज़ें फिर खराब हो जाती है। लाइक द मेन ऑब्जेक्टिव इज पढ़ाई एट दैट मोमेंट। तो वो फेयर अपनी जगह रहता था, और उसमें कहीं ना कहीं ग्रेड्स भी बुरे होते थे। कभी कोई टीचर आपको मुश्किल टीचर मिल जाए तो उनके साथ फिर टाइम मुश्किल गुजरता था कि अब बहुत पढ़ना पड़ता था, उतना टाइम नहीं होता था मेरे पास। तो मैनेज करना आई थिंक उस वक्त का फियर वो था। आज अगर मैं देखूं उस चीज़ को तो मुझे लगता है कि शायद उस चीज़ ने मुझको इतना रिजिलियंट बना लिया कि मूविंग फॉरवर्ड जो मुझे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए ना, वहाँ पे आई वाज एबल टू मैनेज देम बिकॉज़ आई यूज्ड टू डू लाइक एन 18 आवर डे एवरी डे ड्यूरिंग दैट टाइम। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वाला बिल्कुल। हाँ, तो मतलब अच्छा खासा ना कि 4-5 घंटे आईबी करा, फिर 8 7-8 घंटे जॉब किया। कम्यूट टाइम, खाने कम्यूट का टाइम टाइम, बीच में गुजरता है। वो भी तो। अच्छा, तो हसन उस वक्त का चैलेंज, एंड आई एम ग्लैड आपने मुझे फियर की इवॉल्विंग नेचर भी बताई है कि ओवर टाइम चेंज होते हैं। जब आपने यू वर ऑफर्ड फ्रॉम एन समर इंटर्न टू पार्ट टाइम टू फुल टाइम, एंड यू वर बाय द एंड हेड ऑफ सेल्स मैनेजिंग अ टीम ऑफ 11, हु वाज द प्राउडेस्ट? I think even today, I would say my mom is the proudest for all of this what I've done so far, and she has been a constant support throughout this journey. And she was the one who always used to come and tell me, देख तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ये तुमने अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है कि you need to believe in yourself. और कॉन्फिडेंस अपना अपने अंदर से ही हाँ, आना और वो चाहिए। घर वहाँ से ना बहुत मैटर करता है। आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव सीन पीपल अराउंड, और जो घर से कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना, वो शायद आपको मार्केट में जाके लोगों से मिलके, दोस्तों यारों से, इवन आपके बॉस से भी नहीं मिलता वो कॉन्फिडेंस। और काफ़ी दफ़ा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं स्कूलिंग की, एकेडेमिया की या Yeah. वर्क प्लेस की, काफ़ी दफ़ा इन सिचुएशंस आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन किया जाता है। बिल्कुल, ऐसे ही तो है। अगर आपका And you आर्मर have those कॉन्फिडेंस का moments. Yeah. स्ट्रॉन्ग हो तो Yeah. यू कैन पुट अप एन Yeah. इक्वल फाइट। Yeah. You said you're from IBA. I am a college counselor by profession. I work very closely with IBA students and from other universities. IBA students are very sensitive, GPA sensitive. Yeah. And because they go on to do great things, and I think it's a great point to tell our viewers that he's actually one of the most prominent alumni of IBA, and this is a very prestigious place to be based on merit and at a very young age. Yeah. I was discussing with Hassan off camera, and he said I became CCO at 29, and that is internationally also a very, very young age to be Yeah. CCO of a company like Go Lutlo. So tell me one thing, कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी and GPA उस वक्त, it's up to you to share your GPA or not. I'll leave that up to you. But what we did discuss was कि बहुत high नहीं थी relatively based on IBA standards. And everyone's probably applying for management trainee programs at multinationals में इस stage पे पहुंचा. What's your GPA? Yeah. वो आपने जो एक क्या बोलूँगी stigma था, how did you deal with that? यार आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अगर हम देखें ना तो ये जो माइंडसेट है ना जीपीए वाला, ये हाँ. हमारे अंदर ना बचपन से इंस्टॉल किया जाता है। जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम Yeah. स्कूल में होते हैं कि ए ग्रेड ही अच्छा है, अगर Yes. बी आ गया तो आप कम हो किसी से। लाइक द कंपटीशन इज बेस्ड ऑन ग्रेडिंग, राइट? और बहुत ही क्वांटिटेटिव होता है, you have to quantitative fit a होता है वो। certain mold and standard, बस that's क्या वो it. एक किताब है, वो हर किसी को एक ही तरह से पढ़नी है और एक ही जैसा रिजल्ट लेकर आना है। तो हर इंसान तो आज अलग है ना, ये तो हम सबने इतने अरसे में अब जाके इवॉल्व होकर सीख लिया है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज वेरी डिफरेंट टू द अदर पर्सन, And that's the unique strength. एंड दैट्स द यूनिक स्ट्रेंथ, राइट? अब आप कहते हो नहीं सब जो है ना वो इसी लाइन पे चलेंगे और इसी तरह चलेंगे और उसी पे ही गेज करेंगे। तो वो जो क्राइटेरिया ना, आई थिंक वो हम लोगों को करते करते बचपन से कहीं ना कहीं हमारे अंदर इंस्टिल हो चुका होता है। सो व्हेन वी गेट इनटू यूनिवर्सिटीज, मेन गोल इज कि हमें इतनी जीपीए मिल जाए। अच्छा, वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने कहा मास्टर्स अप्लाई करना है, सो द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड विल आस्क यू फॉर सर्टेन जीपीए। मल्टीनेशनल्स का भी एक बेंचमार्क बिल्कुल होता है, होता है। मिनिमम 3.3. So when they send out their, I remember the time when I was at IBA, only last semester हमारा सब नौकरियां ढूंढ रहे थे। मेरे पास Yes. नौकरी थी, बट फिर मैं अच्छी नौकरी, ऑब्वियसली आपको उसमें होता था कि मल्टीनेशनल में मेरी भी नौकरी लग जाए, Yes. सब ढूंढ रहे वो होते हैं। conversations हो रही वो होती कॉन्वर्सेशन हैं. हो रही होती है, दोस्तों की फिर लग भी रही होती है, तो आपको एक वो कंपटीशन अंदर से भी जाग रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, Positive दो क्या कर रहे हैं। competition. Positive competition. और honestly we're happy for the people who get it, Hmm. and for people who didn't get it at that point in time, I can surely say that they also made it.
ऐसा नहीं कि they were stuck somewhere. सबकी जर्नी डिफरेंट थी. Everyone बिल्कुल. eventually made it, right? 10-12 साल लगेंगे सबको करने में मेहनत, और लेकिन वो पेस कहीं ना डिफरेंट कहीं आ होती जाएंगे. है और अप हाँ, एंड डाउन डिफरेंट होता है एंड बिल्कुल आई एम डिफरेंट सो होता है. ग्लैड दैट एट दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर फॉलोइंग इज द यूथ बल्ज ऑफ पाकिस्तान एंड दोज आर द ones who I stay up at night and think about because those are the ones who need roadmaps from people like you who've made it, but how else will those people be connected to your journey? Yeah, And that's why we came up with the word really real, because we don't just want success stories on top so everything looks hunky yeah, dory, yeah, but वो जो एक step up था, वो insecurity, वो vulnerability. So बिल्कुल. thank you for setting the tone for me to make it easy. बट जब वो वाले कंपटीशन अगर होता है कि किसी की मल्टीनेशनल हो गई ना, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं फियर भी तो आता फिर है होता कि है. मेरा क्यों नहीं हुआ. I actually went through that phase, I would say, because हुआ क्या था कि यूनिलीवर की जो हायरिंग प्रोसेस है वो यूजुअली स्टार्ट्स होता है जनवरी फरवरी में, और मार्च में दे स्टार्टेड रोलिंग आउट इनविटेशंस टू कैंडिडेट्स फॉर मेडिकल और दूसरी जो उनकी प्रोसेस होते हैं. सो देयर वर पीपल एट आईपी हु गॉट दैट, ठीक है, एंड Hmm. ऑब्वियसली मुझको नहीं आया उस टाइम पे. तो आई वाज इन And can we दैट tell the फेज. viewers now that you've spent 9 years at 7 years. seven Yeah. years at Unilever So that in eventually happened, sales? yeah. But उससे पहले का फेज ये था कि मुझे नहीं आई थी वहां से कॉल, एंड मैं उन लोगों का पार्ट था जो लोग ये फील कर रहे थे कि हमें जॉब नहीं आ रही. Hmm. मैं बहुत कंफर्टेबल था उस स्पेस में. उसकी दो रीजन थी. पहली रीजन ये थी कि यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. Hmm. यहाँ नहीं होगा ना तो कुछ और होगा. अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है, सो यू विल फाइंड योर वे. दूसरी Amazing. चीज ये कि यूनिलीवर नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज इन पाकिस्तान, राइट? यूनिलीवर इज अमंग्स द बेस्ट, आई वुड से. मतलब मैंने वहाँ काम किया तो आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर दैट. बट उस पॉइंट पे तो आपके सारे ऑप्शंस होते हैं, यू कैन स्टिल एक्सप्लोर. What happened was eventually somewhere in July, when they were starting off with their program, a week before they started off, they gave me a call The management trainee for the program? management training Yeah. program. I got a call from HR and they were like कि आप हमें एक हफ्ते बाद join कर लें. And I was like कि this can't be real. मतलब there's someone doing a fake call with him, because 6 महीने हो गए, लोगों के medical हो गए, people have started joining. How can they call me right now? And what happened was कि उनका कोई candidate backed out. I was on the waiting list on the top, as a top candidate for waiting list. They added me from there and eventually I landed as a sales How job. big is the role of luck in your life? I think a very big role. I always give it to my parents for that support, because मुझे लगता है कि जो माँ बाप की दुआ है ना वो आपको कहीं और लेके जाती है, और वो अल्लाह का Destiny शुक्र है, बदल भी जाती बदल है एक जाती दुआ है. से. I think that really helps. और मतलब मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में अगर आप हैं और आप कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो उसमें किस्मत के बगैर आप कर सकते हैं. Hmm. क्योंकि नॉट जस्ट पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू बी ऑनेस्ट, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मेरी जर्नी में सुनने में मिलेंगी जहाँ आपको लगेगा कि एक सब लोग इंटर्नशिप करने गए, ये लूट लो पहुंच गया जिसका कोई नाम नहीं था. अच्छा, लूट लो फिर इतना होते होते इवॉल्व कर गया कि उसकी एक वो बन गई, अपनी रेपुटेशन बन गई उस ऑर्गेनाइजेशन की. मेरी उसके साथ एक रेपुटेशन बन गई. एंड Nutlo, and actually अभी हम यूनिलीवर की बात कर रहे थे, यूनिलीवर पे भी यू आल्सो आर मल्टी अवार्ड विनिंग. यू वन Yeah, द कंपस alhamdulillah. अवार्ड फॉर ई कॉमर्स की जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, बिल्कुल. एंड द हीरो अवार्ड फॉर सेल्स. सो व्हेन ये नहीं है कि सिर्फ IBA से रिलेटिवली लो GPA से यू जस्ट मेड इट लास्ट मिनट वेट लिस्ट पे, वहाँ जाके भी आपने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया एंड यू हैव एक्कोलेड्स ऑफ दैट. आई थिंक इंसान के हाथ में जो चीज़ है ना वो एफर्ट है और स्ट्रगल करना है. जैसे कि इफ यू स्ट्रगलिंग इनफ, यू हसलिंग इनफ, यू पुटिंग इन ऑल योर बेस्ट एफर्ट, रिजल्ट्स तो देखें कहीं ना कहीं आज जाएंगे तो कल आ जाएंगे. रिजल्ट्स इज अ फंक्शन ऑफ, इट्स एन आउटपुट. द Yes. इनपुट नीड्स टू बी राइट. Yes. अगर आपने इनपुट सही किया ना, आपने मेहनत प्रोसेस सही फॉलो किया है, तो आउटपुट भी आ ही जाएगा How आपका. important is honesty and integrity in this I think it's result? one of the most important things I would say, because if you're not honest, आप अपने साथ भी honest हो, आप सामने के साथ भी honest हो, अपनी टीम के साथ भी honest हो. I think मैंने जिंदगी में बहुत सारी टीम्स चलाई. When I was Unilever also, मैं इस्लामाबाद भी था यूनिलीवर के साथ, मैंने वहाँ पे भी टीम मैनेज की. अब यहाँ गो लूटो में there's a big team also. लेकिन इन सब चीज़ों में जो चीज़ कॉमन रही है ना with my team, actually I'm sure they can vouch for this also. I hope they do. Is that You can let us know in the comments below. yeah. Anonymous Uh, accounts. It was definitely that we had a very good culture within the team because we were all honest. Because मैं जाके सामने बता दूंगा कि ये चीज मुझको आती है और ये चीज मुझको नहीं आती. This is where I depend on you and this is where you will depend on me. और वो जो एक वो होता है ना आपस में एक कोहेजन क्रिएट करना कि आप किस तरीके से काम करोगे, कि चार चीजों में देखें जो आपकी टीम है ना, वो मैं हमेशा जिंदगी में उन लोगों के काम के जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे इन टर्म्स ऑफ इयर्स. ठीक है, अगर मैं आज जाके उनको उस एक्सपीरियंस के पीछे ये बोलूं कि मैं आपका बॉस हूँ, अब आपका एक्सपीरियंस व्हाटएवर इट वाज, यू आर रिपोर्टिंग इनटू मी एंड नाउ यू नीड टू डू थिंग्स माय वे. तो वो उस तरीके से तो मैं उसकी एक्सपर्टीज को जाया कर दूंगा. जो वो Yes. सीख के जिसने साल उसने लगाए इस इंडस्ट्री में बैठ के, या जिसने 10 साल के एक्सपीरियंस एक सर्टेन फील्ड का है, आई नीड दैट एक्सपीरियंस. मेरे पास नहीं है वो, बट मेरे पास क्या है, मेरे पास के बात का स्ट्रेटेजिक लेंस है कि अच्छा इसको लेके हमने आगे कैसे जाना है. तो जब उन दोनों को हम जोड़ते हैं तो वी कैन देन ग्रो एक्सपोनेंशियली. एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस इन इस्लामाबाद यूनिलीवर आल्सो. दिस इज व्हाट वी एक्सपीरियंस इन गो लूटलो एज वेल. तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी में ऑनेस्टी इज बीन समथिंग जो आई वुड से कि हमेशा बड़ा हेल्प करी है मुझे. बिल्कुल, it makes sense because then if the customers of Go Lutlo will know that this is the senior echelons of Go Lutlo, उनके लिए integrity, honesty इतनी important है और एक inclusive management और leadership है. Yeah. So then the product that you come out with or the service that you come out with is also something,
your customers will feel Yeah, safe. yeah. तो मुझे एक चीज़ बताएं, एक mentality है पाकिस्तान में कि we are still stuck to hard cash mentality. Yeah. We don't feel very safe making electronic payments or using a QR code, कोई Yeah. digital payment. Yeah. तो how does Go Lutlo come in and work on that mindset? So what happens is in Pakistan, a lot of times you see कि अब fraud होता है, लोगों के कार्ड डिटेल्स चली जाती हैं, Scams हो रहे हैं scams हो आजकल. जाते हैं, और बहुत डिफरेंट तरह के वेरी स्मार्ट पीपल डूइंग स्कैम्स आई वुड से, ठीक है, वो आपको इस तरह से लगेगा कि बिल्कुल Have सब you कुछ ever gotten a call, a I've scam gotten call? multiple times के, Okay. और उसमें तो मतलब I've been someone just जो उन चीज़ों को लेके then goes out to my family and tells them कि इस तरह की calls आ रही हैं, you need to make sure that if someone calls you on पर आप this सही करते तो हैं. नहीं करेंगे. As a community, हाँ. we should all share this. Yeah. मेरे साथ recently हुआ था with one of the banks that I for सुबह and you're so right, इतने professional They हैं. do it in the They're morning, like, yeah. and their number is also like a UN Very number. similar to UN, Very yeah. similar. So I picked up and then they said something कि आपका, and again this is a good thing to share through this platform कि अगर किसी को पता चला, they said कि आपने taxes अपने भरे तो आपको tax rebate आपको मिल जाएगा वापस. Okay. तो आप मुझे लास्ट 4 डिजिट्स अपने अकाउंट के बता दें. तो आई सेड नहीं, एक्चुअली मुझे बैंक से कॉल नहीं आती. कह रहे नहीं ये नई स्कीम है. तो ही स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल एजिटेटेड. आई सेड नहीं थैंक यू. ही इज लाइक देख लें, मेरा फोन बंद किया, नेक्स्ट FIA से कॉल आएगी. आई सेड आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग टू हाइड, हैप्पी टू स्पीक. सोचे हसन विद इन 5 मिनट्स मुझे एक्चुअल एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप आया. इट्स देयर वाज अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन इन FI यूनिफॉर्म एंड ही मैसेज मी सेइंग हाय 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 5 टाइम्स. I knew one thing, FI वाले के पास इतना टाइम नहीं मुझे 5 दफा हाई कहने का. वो अच्छा घर आके आपको ले जाएंगे कि आप आ जाएं. Yes, and I was so happy कि जब मेरे साथ ये हुआ, I told everyone at work, I told everyone, because sometimes our elders maybe जो इतने tech savvy नहीं है, तो they could fall prey to this. तो ये स्कैम्स हो रहे हैं, तो फिर Go Lutlo क्या करता है to make the customers feel safe? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोगों ने in the last 2-3 years, in fact post COVID I would say, हमने क्या किया, हमारी जो अपनी in-house customer support team है, they're very much out there to help people out. Okay. So पहले क्या होता था कि हम लोग इतना रिस्पॉन्सिव शायद उस तरह से नहीं कर पाते थे कस्टमर को अगर आप 15 मिनट जवाब नहीं दे रहे हो उसको लगता है फेक है. अगर कस्टमर कहीं खड़ा हुआ है और उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है या उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उसकी क्वेरी को लेके, या वो कहीं अपना बेचारा कहीं मसला भेज रहा है ईमेल पे और कोई रिस्पॉन्ड ना करे, तो वो जर्नी हमने इतनी स्मूथ कर ली है कि इफ देयर इज अ कंप्लेन, इफ यू आर स्टैंडिंग एट एन आउटलेट कहीं पे भी पाकिस्तान में, Go Lutlo का डिस्काउंट देने फॉर KFC पे, और वो आप स्कैन करते हो, आपको व्हाटएवर रीजन दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है, कोई आपको इशू आता है, अगर तो आप आप हेल्पलाइन कहाँ पे कॉल मैसेज करते करेंगे? हो, हेल्पलाइन कॉल करेंगे, ठीक है. अगर आप उस पे कॉल करते हो, द डायट इज दैट विदिन 15 मिनट्स, विदिन 20 मिनट्स मेरी कॉल सेंटर टीम, मेरे जो अलायंस की टीम है और मेरे जो मर्चेंट मैनेज करते हैं और मर्चेंट की जो टीम है, वो आपस में कनेक्ट करेंगे, विदिन 20 मिनट्स उस कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करेंगे. And there are real people. ये AI और bots नहीं है. bots नहीं है. क्योंकि जो आजकल there are many other companies यही tech में, तो they have very fast response times, but you know you're not speaking to a person and you're speaking to AI. Eventually आप जो ना as a person, मैं बड़ा irritate होता हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ उसका जवाब एक ही आ रहा हो सामने से. कि we understand your and you're like, that's great AI that you changed my name, but there's a code out there doing that. That's not a person. So I guess human आप लोग की है. हमारी ठीक है, customer support, we have expanded that team over these last 2 years ताकि हम लोगों को टाइम पे रिस्पॉन्स दे सकें. It's a big cost also, but हमें लगता है कि ये जो customer service है ना, this needs to be at the key, at the heart of everything. Because अगर हमारा customer ही खुश नहीं है तो मैं सारा काम कर किसके ले रहा हूँ? मतलब मेरी ऐप, मेरा सारा प्रोडक्ट बना है इसीलिए ताकि इवेंचुअली कस्टमर को फायदा हो, उसकी जेब से 1000 रुपए की जगह पे 700 रुपए खर्च हो और उसको सेम वैल्यू मिले. बिकॉज देखिए हसन, आप सिर्फ एक कस्टमर को, यू नॉट डीलिंग विद एनी कस्टमर फॉर एनी प्रोडक्ट, यू आर डीलिंग इन पाकिस्तान, यू आर हेल्पिंग पीपल सेव देयर मनी, you are helping people save money at a macroeconomic time or whatever. And the early on I said, आप जिस भी तबके से हैं, finances और financial security सबके mind और heart में है at all times. So if you guys are helping someone out in this critical phase of their life, they have a lot of trust in you. You're helping them beyond just, you know, a function. It's a feeling. It's an emotion. And I do want to know, do you think this macroeconomic instability जो है, that makes doing business for Go Lutlo easier because everyone's more discount savvy, looking for a good deal? I think हर टाइम के pros and cons हैं. इस वक्त बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी है पाकिस्तान में, जब इस बुरे हाल में जब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक टर्बुलेंट टाइम है, और बहुत सारे मुश्किल वक्त भी हैं अगर हम देखें दूसरी तरीके से. तो Go Lutlo अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड वाज समथिंग दैट रियली यू नो शुक अस अप के हम लोग क्योंकि पूरा मॉडल इंस्टो पे रन करते थे. Pre-COVID, it was only the in-store model that we had. And COVID में तो हम सबको पता है सब बंद हो गया था. So हमारा तो पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया था ना, बिकॉज अब कोई दुकान ही नहीं एग्जिस्ट करेगी और दुकान पे कोई जाएगा ही नहीं, तो मेरा QR स्कैन कौन करेगा, मेरा बिजनेस मॉडल चलेगा कैसे? So that's when we expanded into 2 different verticals. One of them was the food delivery vertical. So now you can order food from Go Lutlo, and the best part is that all these merchants have a discount. So मेरी ऐप के ऊपर कोई ऐसा मर्चेंट नहीं है जो खाना डिलीवर करने के लिए वहाँ पे जिसके पास डिस्काउंट नहीं हो.
So तो that's अगर the हम USP. लेट्स से फूड पैंडा पे ना करें, गो लूटलो पे करें, तो ऑटोमेटिकली हम सिर्फ फूड ऑर्डर नहीं कर सकते, हमारा डिस्काउंट भी You're वहाँ saving होता money है. also, आई right? डिडंट नो दैट. ठीक है, तो फूड डिलीवरी वर्टिकल स्टार्ट किया, साथ में हमने एक ई कॉमर्स वर्टिकल स्टार्ट किया जहाँ पे हमने डिफरेंट पार्टनर्स के साथ वो किया कोलैबोरेट, जो अपनी उनके अब जो वक्त है ना, जो टाइम है वो आगे बढ़ गया, राइट? नाउ पीपल वांट देयर customers to shop online more than they prefer them doing it in store because cost व्हाई? different है. कॉस्ट. ओके. ठीक है, क्योंकि इन स्टोर की एक रेंट है, पूरी दुकान बनानी पड़ती है, एक पूरा एम्बियंस क्रिएट करते टीम हो, होती है. टीम होती है. ई कॉमर्स पे यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ स्टोर और उसके ऊपर आपकी इन्वेंटरी लिस्ट होती है और कस्टमर वहां से ऑर्डर कर देता है. इवेंचुअली द गोल इज टू हैव मोर कस्टमर्स, राइट? सो और कस्टमर के लिए भी आई थिंक वो ई कॉमर्स जर्नी ईजी हो गया है, बिकॉज मैं खुद बहुत सारा ई कॉमर्स ऑर्डर करता हूँ, बिकॉज इट्स ईजी ना, घर से बैठ के अपने टाइम के हिसाब से रात के 12 बजे मैं फ्री हूँ ना, तो मैं ऑर्डर तब कर सकता हूँ, मुझे दुकान नहीं मिलेगी रात के 12 बजे जाके खरीदने के लिए. सो ऑब्वियसली ये चीजें मैटर करती हैं. अब उसके अंदर हमने क्या किया, वी कोलैबोरेट विद PIA, एयरसियल एंड मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट्स, जहाँ पे गोलूटलो का जो कूपन कोड है वो हम उसके ऊपर लगाते हैं गोलूटलो के ऐप से लेके, सो यू गेट अ डिस्काउंट. सो लाइक यू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन एयरसियल रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर द बिल इज. आप 5 लाख की टिकट बुक करें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. इस तरह PIA पे यू गेट अ 10% डिस्काउंट इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स. इसी तरीके से यू गेट 10% ऑन ELO, द एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स जो कपड़ों के. ये भी लम्स ग्रेजुएट्स ने आई थिंक स्टार्ट किया होगा. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई डोंट नो इफ यू आर सेइंग इट. तो इस तरीके से हमारे कोई आई थिंक मोर देन 100 ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम जो है वो कूपन आप लोग कोड बहुत देते हैं. ज्यादा, आई थिंक यू नो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग इट, आपके आई थिंक हाईएस्ट नंबर ऑफ वेंडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह, in Pakistan in we have Pakistan the on highest a number of platform. vendors on a single मुश्किल नहीं platform. होती इतने ज्यादा रिलेशनशिप्स को मैनेज करना, बिल्कुल होती है. बिकॉज हर कंपनी का स्टाइल डिफरेंट है. So हमने उसको स्ट्रक्चर इस तरह किया हुआ है कि हमने अपनी टीम्स को बाइफरकेट किया हुआ है इनटू 2 सब एंगल्स. आई वुड से वन ऑफ देम इज योर कोर की अकाउंट्स, जो आपके बड़े अकाउंट्स हैं जिनके they साथ get you you- most business. Okay, so हसन, कस्टमर्स की हमने बात कर ली, मुझे थोड़ा अब कंपटीशन का बताएं. There are new entrants in this market. It's a highly evolving market. You guys have Finja, Easy, Pesa, Jazz Cash. What makes Golutlo so unique? What's your USP? पहली चीज तो आपको बताऊं, हम लोग ना वी रन अ मॉडल जहाँ पे वी बिलीव इन कोलैबोरेशन मोर देन कंपटीशन. Okay. सो जितने आपने नाम लिए इन सब के हम कोलैबोरेट करते हैं. More We work business with for them. everyone. More business for everyone, right? The pie needs to be bigger. Pakistan is a very evolving market. बहुत ग्रोथ हो रही है इस वक्त मुल्क में, इस सेक्टर के अंदर खासतौर पे टेक्नोलॉजी वाले. किसी एक को बड़ा बन के बैठने के बजाय अगर सब एक साथ ग्रो करेंगे, सबकी सर्विस डिफरेंट ना. इजी पैसा Hassan का Khan for Prime Minister. थैंक यू. जब आऊंगा जरूर वोट करना. बट पॉइंट बीइंग के ये सब सर्विसेज डिफरेंट ऑफर करते हैं. इजी पैसे द वॉलेट और उसकी ट्रांजैक्शन की डिफरेंट वो है. हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, कस्टमर्स को बेनिफिट देते हैं. तो इवेंचुअली आप लोग का एक इकोसिस्टम बन एक रहा है. इकोसिस्टम बनता है, राइट? अब वो इकोसिस्टम का मैं थोड़ा सा आपको गोलूटलो का समझाऊं तो उसमें कैसे होता है कि हमने एक 30,000 मर्चेंट का पूल क्रिएट किया, जो 30,000 मर्चेंट्स कोई 158 सिटीज में अवेलेबल है Okay. पाकिस्तान के, जो कि अक्रॉस पाकिस्तान आप कह सकते हो. उन शहरों में उनकी अवेलेबिलिटी है, हेंस मेरी प्रेजेंस भी उन शहरों में उनके साथ आ जाती है. उन सब मर्चेंट्स पे गोलूटलो का एक QR कोड पड़ा हुआ है. सो देयर आर 2 ways टू अवेल दैट डिस्काउंट, कि आइदर यू गो टू द आउटलेट, यू हैव योर फोन गोलूटलो के ऐप एंड यू आर सब्सक्राइब्ड मेंबर. आप जाके मेरा QR कोड स्कैन करोगे और वो मर्चेंट आपको डिस्काउंट ऑफर हसन, कर लेकिन देगा. एक चीज, मॉल्स में तो वाईफाई नहीं चलता और डेटा आता ही नहीं है, कैसे करेंगे? अच्छा, Scan ये QR इशू code. जो है ना, ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है और ये हमारे काफी कस्टमर्स ये बात हमें करते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम लोग एज ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर जो कर सकते हैं मैं उस पर भी आता हूँ, बट ज्यादा बड़ा हम रोल नहीं प्ले कर सकते बिकॉज वो मॉल ने खुद वाईफाई प्रोवाइड करना ये है. एक स्ट्रक्चरल वो प्रॉब्लम है. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. बट हम जो कर रहे हैं उसके अंदर एक इनोवेशन जिसके अभी वर्किंग आउट अल्लाह करे हो जाए, विच इज टेक्निकली साउंड्स इम्पॉसिबल, है कि हमारी ऐप ऑफलाइन मोड में चले. सो एवरीथिंग गोज इन द ऑफलाइन मोड, जहाँ पे आपका सब कुछ, क्योंकि देखें मॉल में जाने से पहले यू हैव इंटरनेट, मॉल से निकलने के बाद यू हैव इंटरनेट, राइट? सो बट परचेज तो अंदर तो होगा. परचेज अंदर हो रहा है. सो बिफोर गोइंग इन देयर आर फ्यू क्वेरीज दैट आर बीइंग रन ऑन द बैक एंड एंड व्हिच signifies कि द यूजर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल ऑफ दैट. Yeah. So maybe we can go through that journey also. So that's something that we're working on very strongly. We're working Innovation on is that. a big priority Yeah. within Golutlo. Yeah, definitely. Because मुझे लगता है कि टेक के अंदर इनोवेशन बहुत जरूरी है और हमारा जो मॉडल है उसके अंदर यूं बहुत जरूरी है कि लोग ना बहुत जल्दी हैबिट चेंज कर रहे हैं. So हर 6 महीने में आपको एक नया हैबिट नजर आता है और अगर आप उसके साथ स्पेस नहीं कर रहे हो तो आप फिर पीछे रह जाओगे. बिकॉज ये बिजनेसेस अब वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस नहीं है जहाँ पे आप 2-2 साल 4-4 साल बाद जाके बोलो अच्छा ठीक है लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. और अब आप लोग स्टार्टअप भी नहीं है, अब तो आप लोग SME में आ रहे हैं. You अल्हम्दुलिल्लाह, guys we've grown also to an growing. extent. Yeah. Another thing, आपकी टीम कितनी बड़ी है? So at Golutlo we are around 200 people in total. उसमें Gen Z कितने हैं? काफी I would say most of the people are Gen Z, apart from people more in the management and I would say the head of department. How is it working? क्या difference है working with a millennial and a Gen Z? अच्छा देखिए पता है क्या है, जो मुझे देखिए मेरा तो बड़ा वो डिफरेंट ओपिनियन होता है. मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान एक डिफरेंट इंसान है और उसको उसकी स्पेस मिलनी चाहिए तो फिर वो बेस्ट परफॉर्म करता है. अगर मैं किसी को भी ये अज्यूम करूँ क्योंकि मैं मिलेनियल हूँ या मैं जेनजी हूँ तो मैं दूसरा भी उसी तरह का हो तो ऐसा Because नहीं you're a होगा. millennial. आई एम अ मिलेनियल, Same. राइट? ठीक है, तो अब तो मेरी एज भी आपने सबको बताई दी है.
अगर तो किसी को मैथ्स में अच्छा है yeah. तो उन्हें पता है. Okay. So I think Gen Z का जो mindset है बहुत different. They need to see the purpose of what they're doing. They can't just do something कि अच्छा ठीक है बॉस ने बोला ना कि 1+1 2 लिखना है तो मैं 2 लिख के आगे चला जाऊँ. They will वो question it. 11 भी कि लिखेंगे. हाँ वो 11 लिख के पूछेगा कि 11 क्यों नहीं हो हाँ. सकता. And you as a boss also you need to answer them. You need to justify it. You need to make that thought process happen कि अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ. And at times you will be surprised to see कि वो 11 सही बोल रहे थे. You will be surprised for that. And as a manager, as someone who's leading the team, you need to be very vulnerable, very open to these conversations as well, right? कि ठीक है मैं अपने नीचे वाले subordinate से भी सीख सकता हूँ, because उसके पास ही value add है, उसका दिमाग का सोचने का तरीका different है, but गलत नहीं है. और हमारे पाकिस्तान की अगर हम कमर्शियल्स को देखें तो जो यूथ बल्ज है जो सबसे बड़ा है 60 to 30 उसमें से मिलेनियल्स भी हैं. बिल्कुल. तो इफ वी डोंट लिसन टू देम ऑन हाउ टू डिकोड मिलेनियल्स वी आर Yeah. लूजिंग बिग बिजनेस आल्सो. ऑल्सो ये कनेक्टिविटी विद इन जनरेशन अगर नहीं रहेगी ना तो आने वाले टाइम में देखें जो मिलेनियल्स है वो और सीनियर मैनेजर्स बनेंगे, जो जेनजीज हैं वो मैनेजर्स बनेंगे, एंड दिस हाउ द साइकिल्स गोना गो. सो वी ऑल नीड टू बी हैंड इन हैंड वर्किंग टुगेदर, राइट? हम वो डिफरेंस नहीं रख सकते कि अच्छा मैं जेनजी हूं तो मैं एक डिफरेंट तरीके से काम करूंगा. इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो तब करेंगी जब सब साथ मिलके चलेंगे. एक डायनामिक माइंडसेट हो. और आई थिंक वी नीड टू बी मोर ओपन टू What एवरीवनस does being ओपिनियन. open mean कि इंक्लूसिव हो? इंक्लूसिव हो, डाइवर्सिटी को प्रमोट करा जाए, ठीक है? मतलब हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ यू विल सी कि एक सर्टेन एज ब्रैकेट के लोग काम करते हैं, एक सर्टेन यूनिवर्सिटी के लोग काम करते हैं, एक सर्टेन जेंडर के लोग काम करते हैं, एक सर्टेन रेस के लोग काम करते हैं, एक सर्टेन एथनिसिटी के लोग काम करते हैं. और आई डोंट वांट टू कोट दोस कंपनीज, लेकिन आपको पता होगा कि गवर्नमेंट में भी ऐसी जगहें बहुत सी, प्राइवेट में भी उसमें भी ऐसी जगहें, देयर आर एमएनसीज आल्सो जो एक डिफरेंट उसमें आपको दिखता है जहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज उनका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता. इंस्पिरेट नहीं करती. हाँ, अगर हो भी तो इंस्पिरेट नहीं करती. मतलब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सेल्स के आपको पता है सेल्स की नौकरियों में ज्यादातर आपको लड़के नजर आते हैं जो फील्ड सेल्स का काम होता The complete ecosystem of the workspace has changed Yeah. in more than many ways. What has been the biggest red flag when you are, let's say, in a crisis situation and there's a confrontation happening? What is that red flag where you think, yeah, ye maamla, and this could of course be at your time as a student, this could be at your time at Unilever, at Go Lutlo. Jab you're in a team or disagreement build up ho rahi hai, things are getting heated or point of the matter completely आप lose कर रहे हैं, वो क्या red flag होता है as a someone who is on top? आई थिंक एनी मीटिंग आई वुड से, अगर हम प्रोफेशनल उसमें बात करें तो किसी भी मीटिंग में जब टोनैलिटी हाई पिच होना शुरू हो जाए ना, तो दैट्स माय फर्स्ट क्यू कि ये मीटिंग सही तरफ नहीं जा रही है. जो टोन है, ठीक है? क्योंकि अगर कोई बंदा, कोई भी, चाहे वो सामने कोई फीमेल हो या मेल हो, कोई भी लाउड नहीं हो सकता किसी के साथ. वी ऑल देयर टू डू अ बिजनेस मीटिंग, वी ऑल देयर टू डिस्कस अ सर्टेन टॉपिक, जिससे एक दो तरफ की गेन्स निकलेंगे कि सबको बिजनेस में कोई फायदा होगा. नहीं होगा तो विल शेक हैंड्स एंड विल मूव फॉरवर्ड. बट हमें उसमें कोई एक दूसरे से लड़ाई करने नहीं आया ना. तो अगर वहाँ पे कहीं आप मुझे, तो मेरा सबसे पहला रेड फ्लैग या मेरी सबसे क्यू यही होता है कि अगर यहाँ वॉइसेस रेज होना शुरू हो गए हैं, सो माय फर्स्ट इंस्टेंस कि अभी यहीं पे रोक लूँ, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं कंट्रोल करूंगा, इस पॉइंट पे नेविगेट नहीं करूंगा तो ये बढ़ेगा. क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स तो होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हमेशा होंगे, एंड डिसएग्रीमेंट्स आर वेरी हेल्दी. आई वांट टू हैव डिसएग्रीमेंट, बट आई वांट टू हैव देम विद रिस्पेक्ट. You can't not have respect and disagree. You have to respect the other person there as well. There can be respect within disagreement. Yes. And एक और चीज है, प्रोफेशनल को पर्सनल मत बना ले. बिल्कुल. वो एक अलग हेल्दी बाउंड्री है. सो हम लोग तो मतलब जब यूनिवर्सिटी में या यहाँ पे भी जब मीटिंग में होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करते हैं कि नो ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करूंगा, सब होता है. देयर आर रियली हार्ड मीटिंग्स एट टाइम्स आल्सो, स्पेशली जब क्रंच टाइम्स होते हैं, जब आपके नंबर्स नहीं हो रहे होते, आपके वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, या आपको दिखता है कि किसी एक बंदे की वजह से पूरी टीम फंबल कर रही है, तो फिर उसको कैसे बेहतर करना है. तो बहुत एक हार्श आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और डेलिकेट कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो भी होती हैं. और करियर कॉन्वर्सेशंस भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं बहुत दफा, तो जो आपने रिसोर्सेज की याद कर रहे हो तो वो सब बड़े मुश्किल टाइम है. बट आई थिंक द गुड पार्ट इज दैट वंस यू आउट ऑफ दैट मीटिंग यू नीड टू बी फ्रेंड्स अगेन, बिकॉज वो मीटिंग इज नॉट अ पर्सनल मीटिंग. या मैंने किसी को पर्सनल वो नहीं बोला है, उसने मुझे पर्सनली कुछ नहीं बोला, उसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं लगा, विच इज ओके, राइट? एंड बाहर निकल के वी नीड टू बी कंफर्टेबल विद ईच अदर अगेन, बिकॉज हम लोग दोस्त है, हम लोग की एक आई वुड से रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है देन व्हाट हैपेंस इन द मीटिंग. I think, your episode is a true masterclass for students, not just in IB, anywhere in Pakistan, who on the academic merit might not be top tier, but their work experience, their journey is so robust that they make it to great accolades. Yeah. What's the one tip you would like to give to someone who's watching, who might not be getting the 3.3 plus and wants to do great things in life from your experience? I would say think about yourself as a package. Never think about yourself as one single point of
parameter to gauge or judge you as a successful candidate for someone or someone who's not capable enough. Don't never judge yourself with a single parameter. You need to see yourself as a package, and when you look at yourself as a package, you will see कि मेरे अंदर क्या क्या और qualities हैं. So अगर आप मतलब मेरी GPA चले बता ही देते हैं, it is 2.99 when I graduated. It was merely 3 I would say, but नहीं लिख सकते आप 3. But इसमें एक poetic rhythm है. 2.99 GPA से he became CCU at 29. Yeah, if So you put 2 it like and 9 that. are your उस- lucky numbers. Yeah. उस वक्त नहीं पता था ना कि बनेंगे, तो उस वक्त तो बड़ा डर लगता था कि 2.9 लेके हम मार्केट में उतरेंगे तो हमारे साथ क्या होता है. शक्ल कैसे दिखाएंगे? हाँ ठीक है, लेकिन आई थिंक क्योंकि मैंने 2 साल साथ काम किया, Hmm. और मैं आई थिंक हर बच्चे को जो इस वक्त पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, आई वुड रिकमेंड कि यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस बियॉन्ड द एक्सपीरियंसेस जो आपको लेने जरूरी हैं. तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी, थर्ड ईयर में एक इंटर्नशिप करना मैंडेटरी वो compulsory होती है, वो एक कंपल्सरी social होती होती है, है, एक corporate सोशल होती एग्जैक्टली है, ठीक है, yeah. सोशल क्या है, कॉर्पोरेट क्या है, सब करके जा रहे हैं. तो जब 500 बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है ना, उसमें आपका डिफरेंशिएशन फैक्टर क्या है? एवरीवन नीड्स टू हैव दैट थिंग, The USP. द यूएसपी. और वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ना आपको 4 साल में बिल्ड करना है. देख अच्छा, दूसरे बहुत से लोग इवेंट्स में काम करते हैं. मैंने बहुत इवेंट्स में IBA का काम किया, हमने कॉन्सर्ट्स कराए, हमने म्यूनिक कराया, बहुत इवेंट्स किए और बहुत मजा आता है. इट्स ऑल गुड, बट देन अगेन द एंटायर IBA स्टूडेंट बॉडी इज इन्वॉल्वड. You're not standing out of it, which means that as an individual, when you're applying to universities or you're applying for a job even after undergraduate, you need to have a complete package. You need to have a unique package. I would say every person needs to have a unique story at the back of it. अगर आपके पास uniqueness नहीं है ना, तो फिर तो आप एक part of the herd हो बन गए ना, आप तो एक उसका झुंड का part हो, फिर you're not standing out. So that's where I would say the important question comes in कि हर बच्चे को जो 4 साल पढ़ रहे हो, उस 4 साल में से आप क्या करते हो जिससे आपकी वो एक्सपीरियंस आपको शेप अप करते हैं कि आप एक बड़ा चैलेंज जिंदगी में जो आगे जॉब की सूरत में हो सकता है, बिजनेस की सूरत में हो सकता है, पढ़ाई की सूरत में हो सकता है, वो आप लेने के लिए रेडी हो रहे हो. एंड इट एड्स योर मैच्योरिटी टुगेदर विद दैट, राइट? सो वो एक पैकेज बनाना आपको अपने आप के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए नीड टू हैव गुड मेंटर्स एज वेल. सो एक पार्ट तो वही जहाँ पे आप खुद सोच के करते हैं. जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था और आगे करियर में अपने बढ़ रहा था, तो मुझे जो आज तक हमेशा फील होता है, मैं बल्कि बात भी कहती हूँ तुमसे पहले, कि मुझे ना जिंदगी में कहीं बहुत सारे मेंटर्स नहीं मिले, या कोई ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं मिले जिन्होंने, क्योंकि मेरी पूरी खानदान में शायद कोई इस तरह की प्रोफेशनल जॉब नहीं करते, ज़्यादातर लोग अपने बिजनेसेस करते हैं. तो वो जो लर्निंग होती है एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड की, कि हाउ टू बी अडेप्टेबल और हाउ टू एग्जिस्ट इन अ कॉर्पोरेट, वो चीज सीखने के लिए ना आपको बहुत टाइम लगा, मुझे और बहुत वो टाइम पूरा लगा एक वो skill सीखने में. set होता है. स्किल सेट. तो मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे साथ जो भी कनेक्ट करते हैं, आई ट्राई टू हेल्प देम आउट ओवर देयर, बिकॉज मुझे लगता है कि यार जो मुझे नहीं मिला ना, एटलीस्ट वो मैं किसी और को देने की आज पोजीशन में अल्लाह ने रखा है. तो आई थिंक वी शुड गिव दैट बैक टू द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद यू. Hassan, honestly, everything that you've said, I think low-key you could be a very good guidance counselor. And I think Go Lutlo, and this is my personal opinion, is very lucky to have you as a Thank you so CCO, because for your vision, for your words, and your ease for which you speak so much sense, it's great for people to listen. And I really would like to thank my viewers for watching, and let us know in the comments, because we touched upon some topics that I wasn't planning on but are very important for young professionals and students of Pakistan. First being, academic excellence का success सिर्फ एक GPA नहीं होती. You बिल्कुल. don't have to fit into that mold as a predictor of success. Secondly, if you know कि GPA is not working out, the importance of practical work experience to compensate for that. And thirdly, the importance that I think Hassan really, really touched upon was the importance of honesty, integrity, and the power of dua. Yeah, definitely. I think. Yeah. So Hassan, thank you so much for being there. This was very inspirational for me, and I cannot wait to see in the comments for what students, I think आपको बहुत students support मिलेगा, because these are things हम closed doors में बातें करते हैं, या हम comfortable भी नहीं है कहने के लिए कि my GPA is making me feel insecure, या I want to aim high but I'm not good enough. But thank you for letting us have these conversations with confidence, letting us save our money with discounts. I'm going to try using Go Lutlo to order my food next time. But thank you for coming. See you all next week, inshallah, with hopefully an equally really real conversation. Take care, and Allah Hafiz.